So in this particular meet, we are going to cover two topics, which would be the forecasting and other would be the financial evaluation for the projects that we do, which consist NPV, IRR, and payback. So I think so we should start with forecasting. This is a topic where 10 on 10 marks we can get easily. So scoring out of in this particular topic is in our hands. Mostly it is question number 2, question number 3 comes from forecasting, and for sure 10 marks are there from this particular chapter. So forecasting is nothing but we have to find out what is. Before starting that, I would like to tell you that this subject is not difficult. हुआ ऐसा कि हमने lectures ही attend नहीं किए, इसलिए सबको अभी वो tension आ रहा है, but don't panic. Passing is very easy and even scoring good marks is easy in this particular uh, paper, but only thing is understand everything logically. ठीक है, कि फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर कैसे करना है, नेटवर्क डायग्राम ही नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है. लॉजिकली अगर याद रखोगे तो बहुत इजी होगा ये पेपर, एंड वी विल ट्राई टू सी एवरीथिंग विद लॉजिक, ताकि कम से कम हमें बाय हार्ट करना पड़े चीजें. So starting with forecasting. So forecasting is nothing but where we try to forecast the sales for the upcoming period. So forecasting में हमारे portion में 3 methods दिए गए हैं, but mostly उसमें से 2 ही methods exam में पूछे जाते हैं. The one is moving average method, and the other method is known as exponential smoothing method. Both are very easy. And we have third one, which is regression. And the formula for regression is something which we have already covered before, जो हम x bar y bar x square y square xy निकालते हैं and उससे total लेके वो जो formula में डालते हैं. I will share the formulas for this in the group. But ये this we are not going to cover because hardly ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता. Mostly it's moving average and exponential smoothing जो paper में आता है. तो we will be covering both of these methods, and इसके बाद after calculating the forecast, what we need to calculate is errors, and errors are of 3 types: MSE, MAD, and MAPE. Mean square error, mean actual deviation, absolute deviation, and mean absolute percentage error. So बहुत easy है. When I will show you, you can, मतलब इसके फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, इतना ये इजी है. सो आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट विद द मूविंग एवरेज मेथड. ये क्वेश्चन नंबर आया था आई थिंक सो 2019 के पेपर में. आई I'm not able to recollect किस पेपर में. This are the all the questions which we'll be doing would be the exam questions. So this is one of the question where they asked us, following data is available about the actual sales quantities for the past 12 years. Find out forecasted sales for 13th year using 3 years moving average. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए. सो व्हाट इज मूविंग एवरेज मेथड? यहाँ पे using 3 years data we have to calculate forecast for the 4th year. तो वो एक साइकिल में कंटिन्यू होता है. So every time we will have years or months and the sales data available. Okay, and what we need to calculate is forecast. Okay, so this is sales, this is forecast, STFT, what we denote them. And then we have to just copy down the data for 12 years. 3 years, right? But data is for 12 years. Now, moving average method is of 3 years. Let me explain it कि कैसे होता है. So this is the data which is given in the question. 80, 98, 128, 137, 119, 102, 104, 100, 102,
82 and 73. Now we have to calculate forecast for the 13 period, right? So हमें यहाँ पे 13 period के लिए forecast चाहिए. तो how we come to that forecast is, अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन की मेथड क्या होती है. 3 months मूविंग एवरेज मतलब 4th month का फोरकास्ट विल बी डिपेंडिंग ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 months. सो इट वुड बी 75 प्लस 80 प्लस 98 डिवाइड बाय 3. तो ये आएगा आंसर. इफ वी कैलकुलेट 75 प्लस 80 प्लस 98 डिवाइड बाय 3, इट वुड बी 84.33. दिस इज द फोरकास्ट फॉर 4th month. अभी 5th month का चाहिए तो उसके पहले वाले 3 months विच वुड बी 80. लेट मी रब दिस. विच वुड बी 80 प्लस 98 प्लस 128 डिवाइड बाय 3. तो ऐसे वो साइकिल में हमें करते जाना है. 80 प्लस 98 प्लस 128 डिवाइड बाय 3, 102. तो ये आ गया 5th month के लिए. तो फर्स्ट 3 months का आएगा ही नहीं. जितने मंथ्स का मूविंग एवरेज है उस मंथ का फोकस नहीं होता, उसके बाद वो स्टार्ट होता है. अभी नेक्स्ट 6th month का चाहिए तो वी विल बी टेकिंग 98 प्लस 128 प्लस 137. सो 98 प्लस 128 प्लस 137 डिवाइड बाय 3 विच विल बी 121. Next, for 6th month, now let me write over here only. तो ये हमने किया है 4th month, ये है 5th month एंड ये है 6th month. Now 7th month के लिए फिर से इसके ऊपर वाले 3 months मतलब 128 प्लस 137 प्लस 119 डिवाइड बाय 3 which will be 128. Now next 137 plus 119 plus 102 divided by 3, which should be 119.3. Next, तो ऐसे करते जाना है till we get the forecast for the 13 period, which would be 102 plus 82 plus 73 divided by 3, which would be 85.67, and that would be the final answer. ठीक है. If question is regarding the method they have mentioned is 5 months moving average. So how we will do it? We will start from 6th month. So we will take total of 75 plus 80 plus 98 plus 128 plus 137, the whole divided by 5, and that would be the 6th month. Similarly, for 6th month we will take, for 7th month we will take 119, 137, 128, 98 plus 80 divided by 5, and we will keep on going till 13th month. So this is how it was asked. But even if it is only for 13 month and यहाँ पे कुछ error नहीं पूछा है, but still we will fill this whole table and then solve this sum in the exam. तो ये 3 months आ सकता है, 4 months आ सकता है, 7 months आ सकता है. So logically सिर्फ इतना करना है कि जितने months दिए हैं उसकी टोटल लेनी है. जो मंथ का फोरकास्ट है उसके पहले वाले जितने मंथ्स दिए उसकी टोटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स. तो 4 months होता तो सिमिलरली 75 प्लस 80 प्लस 98 प्लस 128 डिवाइड बाय 4. तो ऐसे करते जाना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So this is the basic simple question which was asked. But exam में ऐसा सम आया तो it's like great, just the forecast. But इसके साथ पूछा जाता है generally the error. Now what is error? We will see that. So we will see the previous question. Let me solve over here. This was moving average method. Now we will see exponential smoothing method with the errors. तो यहाँ पे सिमिलरली पीरियड्स देंगे, सेल्स देंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the sales are 200 220 210
230, 250, 320, 360, 400, 390, and 400. So we have the sales data and we have to calculate forecast using the exponential smoothing method. ठीक है, so यहाँ पे एक forecast calculate करने का formula होता है which is nothing but let me write that in a different color. So using exponential smoothing method का formula है, if we want to calculate forecast for a year, so forecast for previous year plus alpha, which is the smoothing factor, which will be given in the question, into difference of sales minus forecast, which is nothing but error. ठीक है, sales is the actual figure which is happening. Forecast is what human do. And when we forecast, always it not be the same. But yes, so always we will get errors. So that error is nothing but the sales, actual sales minus the forecast. Okay, so alpha into error, the difference. तो ये अभी कैसे करना है? तो generally we will always get the forecasted value for a period in question. तो यहाँ पे if you read the question, use exponential smoothing method, find the forecast using the exponential smoothing method, find the forecast value of sales for all the years, assuming forecasted value for the first year as 200. तो यहाँ पे first year का forecasted value. वाव, काय बॅटरी आहे माझ्या फोन लॅपटॉप मध्ये. ग्रेट. Hello. I think Sorry. it's fine. So forecasted value for first year is 200, which is given in question, and alpha उन्होंने दिया है 0.2, that is also given in question. So we have 0.2 as alpha. तो अभी forecast for second year would be if F2 will be F1 plus 0.2 alpha into S1 minus F1. तो यहाँ पे F1 कितना है? फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में दिया था 200 प्लस 0.2, एंड यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों में? 0. तो द फोरकास्ट फॉर द सेकेंड ईयर विल बी 200. नाउ नेक्स्ट फोरकास्ट फॉर थर्ड ईयर, F3 इज इक्वल टू F2 प्लस अल्फा, दैट इज 0.2 into S2 minus F2, sorry. So it would be forecast for the second year 200, जो अभी हमको यहाँ पे मिला 0.2 into 220 minus 200, which will be 20, which will account to 4. So the answer will be 204. Now similarly, we will keep on calculating it for fourth year. So for fourth year, it would be 204 previous year forecast plus 0.2 into difference of 210 minus 204, it would be 6. So it would be 205.2. Similarly, we will keep on continuing this till we get the forecast for the 11th period, which we need to calculate. So F5 would be 205.2 plus 0.2 into 230 minus 205.2, which would be 24.8. So 24.8 into 0.2, 4.96. So we will get 209.6. Sorry, 209.96. It would be now next F6 would be 209.96 plus 0.2 into 250 minus 209.6, which would be 40.4. So 40.4 into 0.2 plus 209.6, which would be 217.68. Next, for F7, it would be 217.68. You can take it to 1 decibel, मतलब 217.7 भी लिख सकते हो, no
worries, but usually we keep it in 2 decimals. So I've kept it in 2 decimals, 217.68, 109.632 into 0.2. It's basic maths. Only thing is, don't make silly mistakes in the calculations, otherwise it may go wrong. शुभम हाँ बोल ना. फिफ्थ ईयर का 210.16 आ रहा है, हाँ वही. एक बार चेक करना. Okay, हाँ 210 210.16 okay. 210 point. फिफ्थ वाले 16 मैंने कैलसी से नहीं किया था वो, इसलिए. एक बार चेक करना. हाँ, 205.2 plus 230 minus 205.2, 24.8 into 0.2, 4.96 plus 205.2. Yes, 210.16. Okay. Thanks for correcting. Next year would be plus 210.16, 218.13. Now for 7th year, it would be 320 into 0.2 plus 218.13. So I hope you guys are also solving with me. It's very important to keep on solving. Project management, the more you solve, the more you get it accurate. So 238.5. So we will get 262.79. Now 400 minus 262.79 into 0.2 plus 262.79. 287.91. And then we have. शुभम हाँ बोल ना. अगर 9th वाले का 290.24 आया तो चलेगा क्या? Two? क्योंकि 8th वाले का तुझे 262.79 आया ना, तो जैसे मुझे 262.80 आया, तो इसके वजह से 9th का तेरा 287.91 आया और मेरा 290.24 आया. इतना डिफरेंस कैसे आया? चलेगा? थोड़ा ऊपर चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट 3 से कैसे आएगा? 290 नहीं आएगा, 288 289 तक. लेट मी चेक विथ 262.8 अगर मैंने लिया और माइनस 400 इंटू 0.2 प्लस 262.8, 290 आ रहा है. ठीक है, आसपास होगा तो भी चलेगा, इतना कुछ ये नहीं है. यहाँ पे मेन इज 11th ईयर जो उन्होंने बोला है फोरकास्ट करने के लिए. सो तब तक तो थोड़ा सा चलेगा ऊपर नीचे, बट मोस्टली आई सजेस्टेड कि 2 डेसिमल्स तक रखो उसको, 1 डेसिबल पे मत लेके जाओ. ओके ठीक है. प्लस 287.9, 310.33. ठीक है, एंड हियर वी आर डन विद आवर क्वेश्चन. यहाँ पे आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते, बट पूछा है क्या? using sales of 10 period using exponential smoothing method for all the years. तो यहाँ पे 11th year पूछा नहीं है, बट अगर पूछा होता तो भी it's easy to calculate. 11th year का कैसे आएगा? It would be 3110.33 plus 0.2 into 400 minus 3110.33, which will be minus 310.33 into 0.2 plus 310.33, which would be 328.26. So इस तरीके से we get the forecast for the 11th year. तो अभी तक यहाँ पे हमने देखा है 2 methods, moving average method and exponential smoothing methods. I hope it is clear for all. किसी को कोई doubt है इसमें? If not, we can see the error कैसे निकालते हैं.
which would be, I think so. Next question. Let me copy the question over here first. Da, 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 da. Is the question visible? ये जो मैंने अभी paste किया वो? Yes, yes. Okay. So this is the another type of question which is asked. अभी इसमें पूछा है कि यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, तो यहाँ पे फोरकास्ट हमें निकालना है, 0.2 यहाँ पे भी दिया है. डिटरमाइन फोरकास्टेड डिमांड फॉर 8th वीक, तो 8th वीक का फोरकास्टेड डिमांड हमें ढूंढना है. ऑल्सो फाइंड एमएडी, एमएससी एंड एमएपी. तो यहाँ पे इजी है, ये क्या करना है फॉर, एंड यहाँ पे ऐसे भी दिया है फॉर फर्स्ट ईयर और फर्स्ट वीक अज्यूम एफटी इज इक्वल टू 80. नाउ एसटी को 80 भी बोलते हैं, सेल्स को एक्चुअल डिमांड या एक्चुअल सेल्स ऐसे भी बोलते हैं. सो एसटी इज नथिंग बट 80 एंड फर्स्ट वीक में जो 39 हमें मिलेगा वो सेम होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें दिया है वीक्स and we have information for 7 weeks and then we have demand जिसको उन्होंने 80 करके डिनोट किया है, and figures are 39, 44, 40, 45, 38, 43 and 39. ठीक है, and then we have to calculate the forecast, which will be FT using exponential smoothing method, which is for which alpha is equal to 0.2. ठीक है, so we will start calculating. तो वैसे ही है, फर्स्ट ईयर का उन्होंने बोला है 80 is equal to FT, तो 39 लिख दिया. अभी for F2 it would be F1 plus alpha into S1 minus F1. यहाँ पे A1 बोलते हैं उसको for this particular. So it would be 39 plus 0.2 into 0, because दोनों का डिफरेंस 0 है. तो यहाँ पे आएगा सेकेंड ईयर भी 39. अभी थर्ड ईयर F3 is equal to F2 plus alpha into A2 minus F2, which would be 39 plus 0.2 into 5. So 1, which will be 40. Next, F4 will be F3 plus alpha into A3 minus F3, which will be 40 plus 0.2 into, यहाँ पे आएगा फिर से 0, so it would be 40. Next, F5 will be F4 plus alpha into A4 minus F4, which will be 40 plus 0.2 into 5, which will be 41. Similarly, F6 will be F5 plus alpha into A5 minus F5. And it's better you keep on solving this. Matlab, this calculations are not part of your answer, but it's better to show the calculation below the table. तो जब हम solve करेंगे table के नीचे, if you show this calculation, it's better. So F5 is 41 plus 0.2 into 3. So 41.6. And then finally, F7 is equal to F6 plus alpha into A6 minus F6, which would be 41.6. मायनस मध्ये येणार ना? If forecast is -3, then -3. तो माइनस में हम करेंगे ना, अब फोरकास्ट माइनस में नहीं आएगा, डिफरेंस माइनस में आ सकता है. मध्ये 40.4 येणार F6 चं. ओके, लेट मी चेक. यहाँ पे F6 40.4 येते शुभम, 41.6 नाही. मी ते डायरेक्ट केलं, -3 नाही माइनस केलं. माइनस आहे.
यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, क्या हो रहा है ये, एंड ये होगा -3, तो ये पे आएगा 41 minus 0.6 which will be 40.4, right? एंड यहाँ पे आएगा 60 ईयर का, नहीं नहीं नहीं, ये बराबर था ना 41, हाँ F6 का it's 40.4 and 39 which would be 40.4 plus 0.2 into 43 minus 40.4, 2.9. So 2.9 into 0.2, 0.58 plus 40.4, 40.98, 40.98, and for 8-week, which is asked in question. So that would be for F8 is equal to 40.98 plus 0.2 into, ये भी माइनस में आएगा शायद, 39 minus 40.98 minus 1.98 into 0.2, 0 minus 0.396 plus 40.98, which will be 40.58. So the final answer is 40.58. तो यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया, you have scored 2.5 marks till now, ठीक है? अभी इसके बाद मेन क्वेश्चन है, या 2 marks till now. अभी for 3 marks we have to calculate 3 errors. तो वो कैसे अभी हम देखते हैं, ठीक है? So let me rub this also. First, what we calculate is error, which is nothing but denoted as E. ठीक है? फिर वो E प्लस या माइनस में आ सकता है. Then we add mode to E, ताकि उसकी जो भी साइंस है वो निकल के न्यूट्रल सब पॉजिटिव हो जाते हैं. Then we calculate E square, उसको स्क्वायर करते हैं, and then we calculate E upon 80. ठीक है? तो एरर क्या है फर्स्ट में? 0. एरर मतलब क्या? 80 माइनस FT. सेकेंड में क्या है? 44 माइनस 39, 5. थर्ड में 0, फोर्थ में 5, फिफ्थ में -3, सिक्स्थ में 43 माइनस 40.4, 2.6. Then we have 39 minus 40.98. It's minus 1.98. ठीक है? तो मोड में सिर्फ हम इसकी साइन निकाल देंगे, सबको पॉजिटिव कर देंगे. सो दैट्स इट इन मोड. ठीक है, हो गया. 8th वीक का कुछ नहीं करना है बिकॉज वी डोंट हैव द डिमांड. तो ये 7th वीक तक ही होगा. ठीक है, ये जो हम एरर निकालेंगे वो. अभी इसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे. सो 0, 25, 0, 25, 9, 2.6 का है 6.76 and 1.96 का आएगा 3.84. and then E upon the E80. so यहाँ पे हम लेंगे E, मतलब ये मोड वाला ही लेंगे, मतलब विदाउट द साइन. सो E upon ET फर्स्ट का आएगा 0, सेकेंड का आएगा 5 डिवाइड बाय 44 विच विल बी 0.11. थर्ड का आएगा 0 डिवाइड बाय 40, 0. फोर्थ का आएगा 5 डिवाइड बाय 45 which will be 0.11 again. Then we have 3 divided by 38, 3 divided by 38 which should be 0.08. Then we have 2.6 divided by 43, 2.6 divided by 43 which would be 0.06. and then we have 1.96 divided by 39 which would be 0.05. ले लिया.
एंड अभी ये तीनों जो कॉलम्स है लास्ट के उसकी टोटल लेनी है. सो फर्स्ट भाई, कॉलम, हाँ बोलना. यार ये फोरकास्ट में वो जो माइनस में आया था तो माइनस किया है क्या उसको? 41 फिफ्थ ईयर में 41 था, सिक्स्थ ईयर में 40.4 जो आया. हाँ, बिकॉज फिफ्थ सिक्स्थ ईयर का फॉर्मूला क्या था, F6 इज इक्वल टू F5 प्लस A5 माइनस F5. ठीक है, F5. तो F5 क्या था 41 प्लस 38 माइनस 41. 41. तो यहाँ पे और पॉइंट हुआ इंटू 0.2 इंटू अल्फा. सो 41 प्लस 0.2 माइनस 3 ना, हाँ तो ये हो जाएगा 41 माइनस 0.6. तो इसलिए ये आया 40.4. ठीक है ठीक है. ठीक है, बीच जहाँ में पे भी डिस्कनेक्ट हो गया था यार, इसीलिए ये मिस हो ओके गया. ओके ठीक है ठीक है. तो माइनस में ये आ सकता है, बट फाइनल फोरकास्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. जो डिफरेंस है वो हमेशा प्लस माइनस में हो सकता है. तो अभी इसकी सबकी टोटल लेनी है हमको. तो ये आएगा ई का आएगा टोटल 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2.6 प्लस 1.96 17.56. अभी ई स्क्वायर की टोटल आएगी 25 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 6.76 प्लस 3.84 69.6 एंड देन 0.1 0.41. ठीक है, बस इधर हमारा ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिया है. अभी इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एरर. अभी फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है. मीन एक्चुअल डिफरेंस कौन सा है फोरकास्ट और इसका, ये ना एक्चुअल डिफरेंस है 80 माइनस FT. सिर्फ यहाँ पे हमने साइन मोड की है. सो मीन एक्चुअल डिफरेंस इज नथिंग बट उसका मीन लेना है. मीन मतलब एवरेज. एवरेज इज टोटल डिवाइड बाय द नंबर. नंबर कितना है 7 वीक्स का डेटा है राइट. सो 17.56 डिवाइड बाय 7 विच वुड बी 2.51. हो गया, फर्स्ट आंसर मिल गया. सेकंड, मीन स्क्वायर एरर. स्क्वायर कौन सा लिया है, ये वाला स्क्वायर है. स्क्वायर का टोटल क्या है 69.6. मीन मतलब एवरेज डिवाइड बाय 7. तो 69.6 डिवाइड बाय 7 which would be 9.94. एंड देन मीन एक्चुअल परसेंटेज एरर. ये हमने क्या लिया है, परसेंटेज लिया है. एरर डिवाइड बाय एक्चुअल. ठीक है, तो ये है 0.41 डिवाइड बाय 7 मीन है राइट इनटू 100. 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज एरर है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसका आंसर आएगा 0.41 डिवाइड बाय 7 इनटू 100 विच वुड बी 5.86%. एंड यू आर डन विद द होल सम. तो अभी इफ यू फॉलो दिस मेथड ई स्क्वायर ई बाय ET, एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली ये जो टोटल आएगी उसको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वीक्स जो दिए थे वो. यहाँ पे सिर्फ एक गलती हो सकती है, कोई 8 वीक लेगा तो 8 वीक नहीं कर सकते बिकॉज 8 वीक का हमारे पास डिमांड नहीं है. सिर्फ फोरकास्ट हमने निकाला है इसलिए 8 वीक नहीं होता. यहाँ पे 7 वीक्स का ही हम करते, मतलब जितना वीक्स क्वेश्चन में दिया है उतने वीक्स ही हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर है सबको ये? Yes. Any doubts in this? So I think so we have covered this particular thing. I think so. एक sum है या नहीं, let me check. हाँ, इसमें सिर्फ एक हो सकता है गलती. Let me show. So अगर ये सेम डेटा हम ले 1 2 3 4 5 6 7 और 8th मंथ का कैलकुलेट करना है एंड डिमांड दिया है 39 44 40 45 38 43 एंड 39. एंड यहाँ पे हमें ये एक्चुअल डेटा है एंड फोरकास्ट कैलकुलेट करना था 5 मंथ्स मूविंग एवरेज से. तो 5 मंथ्स मूविंग एवरेज मतलब 39 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 38. तो ये आएगा 39 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 38 होल डिवाइड बाय 5. तो इस 6th पीरियड का आएगा डायरेक्टली 43.2 एंड उसके नेक्स्ट 7th पीरियड का आएगा 44 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 38
plus 43, the whole divided by 5, which should be 42, and 8 period का आएगा 39 plus 43 plus 38 plus 45 plus 40 divided by 5, which should be 41. तो अभी हम यहाँ पे जब एरर निकालेंगे तो इफ यू नोटिस यहाँ पे सिर्फ 2 पीरियड्स का एरर आएगा, बिकॉज 2 पीरियड्स का ही फोरकास्ट हमें मिला है. तो यहाँ पे जब भी डिवाइड, यहाँ पे सिर्फ 2 पीरियड से डिवाइड होगा. सो यू हैव टू जस्ट काउंट कि कितने महीने का फोरकास्ट हमने किया है, उतने मंथ से ही डिवाइड होगा. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में हर मंथ का आता है, इसलिए भी डिवाइड बाय 7. बट इफ वी डोंट हैव एवरी मंथ्स फोरकास्ट, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एक्चुअल जो फोरकास्ट हमारे पास है उसी से. सो यहाँ पे जो एरर आएगा, जो टोटल आप लोगे 3 का ई स्क्वायर और ये जो परसेंटेज वाला, उसको डिवाइड बाय 2 ही करना है. सिर्फ इतना ही उसमें डिफरेंस है. जितने मंथ का फोरकास्ट हमारे पास अवेलेबल है उससे ही ये डिवाइड होगा. आई होप इट्स क्लियर. कभी कभी क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स के लिए है ना, तो 10 मार्क्स में ये सेम डेटा के लिए दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट 3 मंथ्स का भी एवरेज एंड ऑल्सो बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, एंड देन दे विल टेल यू कि कैलकुलेट द एरर्स MAD, MSc and MEPE, and they will ask you to find which is the most accurate method to calculate forecast. तो जिसमें भी ये तीनों मैक्सिमम, तीनों में से 2 या तीनों में से एक लो होंगे, ये एरर है, राइट. एरर सबसे कम जिसमें होंगे, दैट मेथड इज बेटर अगर कंपैरिजन आए तो. सो वी विल राइट कि सिंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड वी आर गेटिंग MAD and MSc lower than 3 months average, so exponential smoothing method is better than 3 months moving average method. So ये error जिसके भी कम होंगे, that is better. Fine. So here we have ended the forecasting. Anyone have doubts in forecasting? अभी है तो पूछ लो. ये 10 marks out of मिलते हैं ये टॉपिक में. शुभम, तुमने अभी जो बोला कि वो डिवाइड बाय 2 करना है, वो वाला हाँ. एक बार बताना वापस. हाँ ठीक है, चलो एक मैं रैंडम एक बनाता हूँ सम. ये नयन म्यूट करना. ठीक है, ये एक्चुअल डेटा हमें क्वेश्चन में दिया था, वीक्स एंड ये, एंड अभी क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट फोरकास्ट यूजिंग 3 months मूविंग एवरेज मेथड एंड ऑल्सो बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे 3 months मूविंग एवरेज से. सो फर्स्ट का आएगा 60 डिवाइड बाय 3 20, देन वी हैव 50, 70 डिवाइड बाय 3 23.3, then we have 60 divided by 3 again 20, then we have 50 divided by 3 16.67, and for 8 period we will have 50 divided by 3 again 16.6 period. ये हमें कैलकुलेट किया by using 3 months moving average method. ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड से अगर हमें फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमें अल्फा दिया है 0.1. ठीक है, सो फर्स्ट पीरियड का और उन्होंने मेंशन किया है द फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड इज सेम एज जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, इट इज ऑल्सो 10, या फिर क्वेश्चन में दे देते इट्स फॉर सेकेंड पीरियड, फॉर थर्ड पीरियड इट्स 20. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पीरियड का उन्होंने दिया है फोरकास्ट फॉर फर्स्ट पीरियड इज 10. तो हम अभी स्टार्ट करेंगे. तो S2 का क्या आएगा 10 प्लस अल्फा में 0.1 इंटू 0, दोनों का डिफरेंस 0 है, सो ये आएगा 10. नेक्स्ट अभी सेकेंड थर्ड पीरियड का आएगा 10 प्लस 0.1 इंटू 10, तो ये आएगा 11. नेक्स्ट पीरियड का आएगा 11 प्लस 0.1 इंटू 19, सो ये आएगा 12.9. थर्ड पीरियड का आएगा 12.9 प्लस 0.1 इंटू 20 माइनस 12.9 7.1, so 7.1 into 0.1 0.71 plus 12.9 13.61. For next period 13.61 plus 0.1 into
ये माइनस में आएगा शायद 10 minus 13.61 is equal to minus 3.61 into 0.1 plus 13.61 13.25 next आएगा 13.25 plus 0.1 into 20 minus 13.25 6.75 which plus 13.25 13.93 and last period का आएगा 13.93 plus 0.1 into 20 minus 13.93 is equal to 6.07 बराबर है? नहीं यहाँ पे नहीं 6.07 into 0.1 plus 13.93 सो यहाँ पे आएगा 14.54। ठीक है, अभी ये दोनों दो अलग अलग फोकस्ड है तो दोनों का पूरा जो टेबल आपने बनाया था ना एरर वाला, दोनों का अलग अलग टेबल बनेगा। तो एक मूविंग एवरेज के लिए हम बनाएंगे टेबल जहाँ पे वी विल टेक ये वाला एरर, ये मूविंग एवरेज का है तो मूविंग एवरेज के लिए पूरा ये टेबल हम बनाएंगे एंड ये पूरा सेम टेबल हम इसके लिए भी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल के लिए अलग अलग बनेगा बिकॉज दोनों के एफटी अलग है, राइट? तो दोनों के वैल्यूज अलग अलग आएंगे। अभी व्हेन यू कैलकुलेट ये जब 3 मंथ्स मूविंग एवरेज का टोटल आएगा ई का, ठीक है, तो ये कितने मंथ्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 4 ही मंथ है, ये इग्नोर करना है, ये हमने फाइंड किया है। 8 मंथ लो जो लास्ट मंथ हम फाइंड करते हैं ना अलग से, वो नहीं लेना है। तो ये जो भी होगा ना इसका फिगर फॉर MSc MAD एंड MAP दिस ऑल विल बी डिवाइड बाय 4 बिकॉज 4 ही मंथ्स है। लेकिन ये जब आप करोगे ना एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में यहाँ पे 7 पूरे 7 मंथ्स का है सो दैट वुड बी डिवाइड बाय 7। तो सिर्फ काउंट करना है कितने फोरकास्ट हमने कैलकुलेट किए है, उसी से हमको ये सॉल्व करना है। ओके समझा? हाँ ओके ठीक है। So here we have completed the forecasting. I will suggest you कि 2 दिन है तो 2 दिन में at least if you solve 7 to 8 sums proper खुद से solve करोगे, you are good to get out of marks in this particular topic. Now next we will move to the very important topic जो पहले से हमने करके रखा है and मैंने भी वो रिविजन लिया था तो I hope उतना तो याद होगा एंड दैट इज नथिंग बट फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो व्हेन यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज द रिटर्न्स। कि इफ आई एम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर project, what are the returns I would get? So if you have options of A and B projects, how you will take decision कि मुझे A करना है या B करना है? तो you will find कि किसमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है, जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वो प्रोजेक्ट आप चूज करोगे, राइट? सो फॉर दैट वी कैलकुलेट different things and we have NPV, we have payback, we have discounted payback and we have IRR. ठीक है, तो ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो लेट मी टेक अ सम एंड एक्सप्लेन। तो फर्स्ट हम बेसिक सम लेते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस सम। Okay, so this is the sum which we have. यहाँ पे 3 options है and then we have to decide, we have to give the ranks कि ये 3 में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये जो ब्रैकेट में दिया है 0 में, वो कितने पैसे हमारे जाएंगे ईयर 1 में, इतने पैसे इन्वेस्टमेंट है माइनस में, राइट? एंड फ्रॉम 1 to 5 उन्होंने दिया है कितने पैसे हमको मिलेंगे 5 साल में। ठीक है, एंड देन फर्स्ट दे हैव आस्क्ड अस टू शुभम हा कुठच्या इयरचा पेपर आहे? आई नीड टू चेक कौन से ईयर का होगा ये। 19 19 ओके 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 थँक्यू।
सो यहाँ पे 5 साल का कैश इनफ्लो दिया है, दिस इज नथिंग बट कैश इनफ्लो, एंड दिस इज 0 पे देते हैं ना, वो होता है कैश आउटफ्लो, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसे आने वाला है. एंड देन दे हैव आस्क्ड अस टू रैंक ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड एंड ऑल्सो अज्यूमिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमेशा दिया होगा 10%. रैंक द ऑप्शंस बाय एनपीवी मेथड. ठीक है, तो हमें रैंकिंग भी करना है, तो हमको एनपीवी भी कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट करना है. अभी पे बैक दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल पे बैक जिसमें कुछ नहीं करना है, टोटल लेना है एंड देखना है 5 लाख कौन से ईयर में हमें रिकवर हो रहा है. दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक, जिसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी सी की कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है. यहाँ पे देखो सिर्फ पे बैक दिया है. सो जब पे बैक देते हैं तो जनरली इट्स द सिंपल मेथड, बट पता नहीं यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है. सो इट्स बेटर टू फाइंड पे बैक पीरियड फ्रॉम बोथ द मेथड्स. तो हम स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर सम करना. So we will make columns. First would be obviously year. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, and 5. And then we have option 1. We will first calculate discounting factor at the rate of 10%. तो इफ यू हैव सीन एवरी ईयर्स पेपर, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, ये हमेशा आता है. बट इफ यू अगर दिया नहीं तो कैसे कैलकुलेट करना है, इट्स इजी. अगर 10% है तो 1 डिवाइड बाय 1.1 करना है कैलसी पे. इफ यू हैव कैलसी यू कैन डू दैट राइट नाउ. 1 डिवाइड बाय 1.1 फर्स्ट ईयर का आएगा 0.909. अभी कैलसी पे कुछ नहीं करना है, क्लियर नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू दबाते जाना है. सो नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा 0.826. नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा 0.751. नेक्स्ट ईयर का आएगा 0.683 एंड नेक्स्ट ईयर का आएगा 0.621. ठीक है. और अगर 15% दिया होता तो सिमिलरली 1 डिवाइड बाय 1.15. So 1 divided by 1.15 first year का 0.869, second और equal to दबाते जाना है. So that's easy to calculate. ठीक है. But we have that chart in question paper. So अगर 2019 का पेपर आपके पास अभी होगा तो you can check. Let me open कि उन्होंने दिया है नहीं दिया है. हाँ, उसके लास्ट पेज पे if you go on that question paper उन्होंने ऑलरेडी वो चार्ट दिया है. ठीक है. सो यहाँ पे ऑलरेडी वो फिगर्स आ जाते हैं, बट इफ दे डोंट गिव तो इस तरीके से यू हैव टू कैलकुलेट. नाउ वी हैव ऑप्शन 1. सो फर्स्ट एक कॉलम बनाओगे कैश फ्लो एंड दूसरा बनाओगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ठीक है. कैश फ्लो मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वही 2,50,000, 2,50,000, 50,000 for next 3 years. अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो 2,50,000 into 0.909 which should be 227 into 227,250. Next 2,50,000 into 0.826 which would be 2,06,500. Next 0.751 into 50,000 which would be 37,550. Next 50,000 into 0.683 which would be 34,150. Next 50,000 into 0.621 which should be 31,050. Similarly कैश फ्लो ऑप्शन 2 अभी लेंगे. ऑप्शन 2 के लिए कैश फ्लो क्या दिया है 50,000 है ना. ये 50,000 और एक कॉलम लगेगा इसके पहले. वी विल हैव क्यूमुलेटिव DCF मतलब ऐड करते जाना है. 2,27,250 फर्स्ट ईयर का प्लस 206,500
433,750 2 साल में, 2 साल के एंड में क्यूमुलेटिव इज नथिंग बट पहले ईयर हमको कितना मिला 227,250, सेकेंड ईयर में कितना मिला ये, तो टोटल अभी तक कितना मिला है इतना, थर्ड ईयर में और कितना मिलेगा तो ऐड करते जाना है। थर्ड ईयर में 37,550 ऐड करके आएगा 4,71,300, उसके बाद आएगा 34,150, सो वी विल हैव 5,05,450 plus 31,050 we will have 5,36,500। ठीक है, अभी ऑप्शन 2 अगर हम करेंगे तो उसका सिमिलरली 3 कॉलम बनेगा एंड क्यूमुलेटिव। सो कैश फ्लो दिया है 50,000, 50,000, 2,50,000, 1,50,000 and 5 lakh, and discounting आएगा 50,000 into 0.909 which will be 45,450, 50,000 into 0.826 which should be 41,300, 2,50,000 into 0.751 is equal to 1,87,750. Next, 1,50,000 into 0.683 which should be 1,02,450, and third year का आएगा 5 lakh into 0.621 which should be 3,10,500. Similarly इसका भी क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर में इतना मिला 45,450 प्लस 41,300 और कितना होगा तो ये होगा 86,750 plus 187,750 which will we have 274,500 plus 102,450 we will have 376,950 plus 3,10,500 we will have 6,87,450। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ऑप्शन 3 आई होप एवरीवन कैन सॉल्व, बट कर ही लेते हैं। चलो यहाँ पे जगह करनी पड़ेगी। लेट मी रब दिस। चलो ऑप्शन 3 करते हैं। कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव। कैश फ्लो है 50,000, 2,50,000, we have 2 lakh, we have 3,50,000, and then we have 50,000. Discounting factor 50,000 into 0.909 which would be 45,450, 2,50,000 into 0.826 which would be 2,06,500. Then we have 2 lakh into 0.751 we have 1,50,200. Then we have 3,50,000 into 0.683 339,050, and finally we have 50,000 into 31,050, and then we will have the cumulative. So first year का तो इतना ही है, second year होगा 45,450 plus 2,06,500, 251,950. Third year का plus 1,50,200 which should be 4,02,150 plus 239,050, 641,200, and finally plus 31,050 we have
672,250। अभी लॉजिकली इफ यू डोंट नो कि हमने ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों लिया, सो आज हम 5 लाख रुपए डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल जब अगर हमको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट आप बोलोगे अच्छा है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, बट आज के 5 लाख की वैल्यू कल कम होने वाली है, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले व्हेन आवर रिलेटिव्स is to give us 100 rupees, we used to feel कि अरे बहुत बड़ा अमाउंट है, बट आज छोटे बच्चों के 100 रुपीज दोगे तो लेंगे भी नहीं, बोलेंगे 500 1000 की नोट, 1000 की नोट नहीं है, 500 1000 रुपए दो। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच हैज चेंज्ड, राइट? सो आज के 5 लाख की कल कीमत क्या होगी, वो कम होएगी, राइट? सो उसके लिए भी कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है? तो ये दैट इज आज के 2,50,000 की वैल्यू 1 साल के बाद कितनी होगी, 2,27,250, वो उसका मतलब है। सो वी कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड वी सी कि कितना उसका ये होने वाला है, एंड देन वी गेट दिस क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी एनपीवी करना बहुत इजी है। एनपीवी इज नथिंग बट टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो टोटल तो हमने जो क्यूमुलेटिव का लास्ट है वही इसका टोटल है, राइट? सो 5 लाख ऑप्शन 1 के लिए 5,36,500 माइनस हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 5 लाख। आई होप सो इट्स राइट, 5 लाख किया ना सब में, यस। तो फर्स्ट पीरियड से हमें फर्स्ट ऑप्शन से कितना एनपीवी होगा, 36,500, ठीक है? और इन एग्जाम हाउ वी कैन शो, लेट मी शो कि एग्जाम में कैसे दिखाते हैं। सो एग्जाम में यहाँ पे वी विल राइट ऐसा, कैश आउटफ्लो, ठीक है? एंड ये जो क्यूमुलेटिव है उसके नीचे लिखेंगे ब्रैकेट्स में 5 लाख फॉर ऑल द 3 ऑप्शंस बिकॉज इट्स सेम। सो यहाँ पे भी 5 लाख एंड यहाँ पे भी 5 लाख, ठीक है? तो एनपीवी यहाँ आएगा 36,500, यहाँ आएगा 1,87,450 एंड यहाँ आएगा 1,72,250। सो विच ऑप्शन इज बेटर? 36. हाँ, सॉरी, which option is better to invest? Option 2. Option 2 because we are getting the highest return. ये 187. एनपीवी इज नथिंग बट कितना रिटर्न हमको मिलने वाला है, और जो रिटर्न मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। एक्चुअली रिटर्न कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इफ यू टेक द टोटल ऑफ दिस कॉलम कि कैश कितना मिलने वाला है, सो ये आएगा 50,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5 लाख। यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल हमको 10 लाख मिलने वाले हैं 5 साल के बाद, बट वो 10 लाख की कितनी वैल्यू होगी 5 साल बाद, 6,87,450। तो एक्चुअली एक्स्ट्रा हमको 5 लाख मिलने वाले, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1,87,450। तो जिसकी ज्यादा एनपीवी में, याद रखो, हायर द एनपीवी बेटर इट इज, ओके? तो हमेशा जो एनपीवी हायर होगा उसका रैंक क्या होगा 1। तो एज पर एनपीवी, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। हाँ, शुभम बोल। ये एग्जांपल क्या दे रहा था कि 10 लाख ज्यादा है या फिर ये 1,87,000 कुछ अभी जस्ट बोला ना? ये एनपीवी सबसे ज्यादा है, देख। एक्चुअली ये हमने कैश फ्लो दिए 5 साल के, कितने कैश मिलने वाली है, इसका टोटल करेगा तो 10 लाख आती है, राइट? बट 5 साल के बाद वाला 10 लाख आज के 10 लाख की वैल्यू जितना नहीं होगा, कम हुआ होगा ना उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 5 साल बाद, 6,87,450। तो वो हमने कैलकुलेट किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है
जो 5 लाख एक्स्ट्रा हमको मिलने वाले हैं 10 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली है 1,87,450। सही वो सही, लॉजिक सही। बताया सिर्फ मैंने, वो हाँ एग्जाम में मैंने, कुछ काम का नहीं, लॉजिक बताया। अरे लॉजिक काम आएगा ना भाई अभी इन्वेस्टमेंट में, LIC में। हाँ हाँ, यस। सो अभी रैंक्स एज पर एनपीवी, तो वी विल गिव रैंक 1 टू दिस ऑप्शन, रैंक 2 टू दिस एंड रैंक 3 टू दिस ऑप्शन। तो ये हो गया एक पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट, इफ यू सी, ये एरो क्यों ऊपर नहीं मिल रहा है, ये हो गया एक, अज्यूमिंग ये जो क्वेश्चन था वो हो गया। अभी रैंक द ऑप्शन बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड, तो अभी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वी विल कैलकुलेट। सो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? पे बैक पीरियड मतलब कितने साल में हमने जो 5 लाख रुपए भरे वो हमको रिकवर होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल पे बैक पीरियड होगा तो हमें एक कैश फ्लो वाला ही कॉलम देखना है। तो इसमें वेरी क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन में नॉर्मल पे बैक पीरियड कौन से ईयर में हमारा रिकवर हो रहा है 5 लाख? समथिंग। नहीं, Second. सेकेंड ईयर में 5 लाख, 2,50,000 प्लस 2,50,000, ओके ओके। ये नॉर्मल पे बैक पीरियड है। सो इफ वी कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे आंसर में लिखेंगे तो फॉर ऑप्शन 1 पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 years, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में देखना है 5 लाख कब रिकवर हो रहा है। सो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख प्लस 2,50,000 3,50,000 प्लस 1,50,000 5 लाख, तो 5 लाख कब हो रहा है? 4th ईयर में। सो फॉर ऑप्शन 2 पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 years। एंड ऑप्शन 3 अभी देखेंगे, ऑप्शन 3 में 5 लाख प्लस 2,50,000 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, तो कौन से ईयर में हो रहा है? 3rd ईयर में। सो वी हैव फॉर ऑप्शन 3 पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years। तो अभी इफ वी वांट टू गिव रैंक, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ज्यादा या कम? लॉजिक लगा के सोचो। कम। कम, राइट। कम से कम टाइम में हमें ज्यादा 5 लाख रिकवर करने हैं, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन 1, तो इसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, इसको 3rd रैंक मिलेगा एंड इसको 2nd रैंक। हमें देखना है पे बैक पीरियड, मतलब हमने जितने पैसे भरे हैं वो वापस कितने साल में आ रहे हैं। तो एक्चुअली 2 years में ऑप्शन 1 में आ रहे हैं, सो इट्स बेटर। और नेक्स्ट इज ऑप्शन 3 एंड देन इज ऑप्शन 2। अभी ये हो गया नॉर्मल पे बैक पीरियड। अभी डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में हमें जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है ना, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इफ यू चेक फर्स्ट ऑप्शन में 2,27,000, मतलब देखो कौन से ईयर में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव में चेक करोगे तो 5 लाख कब होगा? यहाँ पे होगा, इस ईयर में, मतलब 3rd और 4th ईयर के बीच में। लेकिन आंसर में जब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है तो पूरा डिटेल्ड में आंसर देना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकते इट वुड बी रिकवर्ड बिटवीन 3rd एंड 4th ईयर, यू हैव टू गिव 3 years एंड हाउ मेनी मंथ्स। तो कैसे कैलकुलेट करना है? ईजी है। देखो हमें कितना पैसा चाहिए, तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, रिकवर कितने करने हैं? 5 लाख। 3rd ईयर तक कितने हो रहे हैं? 4,71,300, ठीक है। तो कितने बचते हैं? 5 लाख माइनस 4,71,300, इट इज 28,700। इतने होने चाहिए थे, ठीक है। अभी हमें देखना है जो 4th ईयर में है, 4th ईयर में कितने पैसे जमा हुए हैं? 34,150 रुपीज आए हैं, राइट। कब आए? 12 मंथ्स में आए हैं। तो 28,700 कितने मंथ्स में होंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 28,700 इंटू 12 डिवाइड बाय 34,150, तो इट वुड बी 10.8
08, so we can consider it as 11 months. ठीक है, तो पॉइंट के आगे जो भी आया उसको 10 या 11 मंथ्स कंसिडर कर सकते हैं. सो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड. सो ऑप्शन 1 में क्या आया? ऑप्शन 1 के लिए आया 3 years एंड 10 months बोलते हैं बिकॉज 0.8 ही है ना. 3 years 10 months. ठीक है. सिमिलरली अभी ऑप्शन 2 को देखना है, तो कौन सा कॉलम देखेंगे? ये वाला क्यूमुलेटिव वाला चेक करेंगे. देखना है 5 लाख कब हो रहा है. इफ यू नोटिस वो आई थिंक सो 4th और 5th ईयर के बीच में हो रहा है, राइट? 5 लाख. तो अभी देखना है कितना रिकवर करना था? 5 लाख. 4th ईयर तक कितना हुआ है? 3,76,950. तो कितना बचा है? 5 लाख माइनस 376,950, तो है बचा है 1,23,550 रुपीज. अभी ये रिकवर होंगे 5th ईयर में. 5th ईयर में टोटल कितना कैश फ्लो आया? टोटल आया, अरे यार ये नीचे क्यों नहीं ड्रैग हो रहा है? हाँ हो गया. सो 5th ईयर में आया 3,05,000 इन 12 months. तो अभी हमें देखना है ये कितने मंथ्स में हुआ होगा. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इंटू 12 डिवाइड बाय 3,10,500. तो ये आएगा 4.75. 4.75 मतलब अप्रोक्स 5 months. तो इसका आंसर होगा फॉर ऑप्शन 2 डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इज 4 years and 5 months. सिमिलरली अभी इसका सोच के बताओ कौन से ईयर के बीच में आएगा? 3rd and 4th. 3rd and 4th, राइट? तो इतना 3rd and 4th के बीच में आएगा. एंड 5 लाख आने थे, अभी तक कितने आए हैं? 4,02,150. सो 5 लाख माइनस 4,02,150. सो 97,850 आने थे इन 4th ईयर. 4th ईयर में टोटल कितना पैसा आया ये वाला देखना है. 239,050 हैज केम इन 12 months. तो ये कितने महीने में वसूल हुआ होगा? सो 97,850 इंटू 12 डिवाइड बाय 239,050. सो वी विल गेट यहाँ पे 4.91 विच विल बी ऑलमोस्ट 5 months. सो यहाँ पे आंसर आएगा 3 years यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन 3 3 years and 5 months. एंड यहाँ पे इफ यू हैव टू गिव द रैंक्स तो किसको कौन सा रैंक दोगे? फर्स्ट रैंक किसको जाएगा अभी? I think 3 could 3 add years, up. 5 months. 3 years. Then we have rank 2 to option 1 and rank 3 to option 2. And here you have completed this sum for 10 marks. I hope it's clear. किसी को कोई डाउट इसमें? एक्चुअली इतना ही कर देते ना तो भी चलता. सिर्फ ना एक क्या कर सकते हैं, व्हेन क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर कि ये डिस्काउंटेड या सिर्फ पे बैक है, तो ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये बहुत इजी था, राइट? सिंपल पे बैक. तो यहाँ पे सिर्फ एक नोट लिख देना, अज्यूमिंग द क्वेश्चन हैज आस्क्ड द पे बैक पीरियड, द फॉलोइंग इज द आंसर, ऐसे लिख देना. ठीक है. या फिर दोनों करना है तो दोनों भी कर सकते हो, डिस्काउंटेड पे बैक भी कैलकुलेट कर सकते हो. हार्डली एक प्रैक्टिस के बाद 2-3 minutes लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द सम ऑफ एनपीवी एंड पे बैक. ठीक है. और एक सम हम लेते हैं जो डिफरेंट टाइप में आता है. लेट मी शेयर दैट सम फर्स्ट. ओके, ये वाला सम हम नहीं, NIRR वाला है पहले, उसके पहले हाँ ये वाला सम करते हैं.
I hope the question is visible, right? Yes. Yes. So यहाँ पे we have years, 5 years and उसका cash inflow before depreciation and tax दिया है. So ये सब दिया है हमको. Initial investment मतलब जो हमारा cash outflow है वो दिया है 20,000. लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में. 5 years. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है 10%. टैक्स रेट दिया है 5% एंड यहाँ पे दिया है द प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए. ठीक है, तो इसमें दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है अलग से. वन इज डेप्रिसिएशन एंड नेक्स्ट इज टैक्स. टैक्स तो इजी होगा, उन्होंने 5% दिया है तो कैलकुलेट करना है. डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन के दो मेथड जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है एंड मोस्टली यही पूछा जाता है. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में है. सो इन्वेस्टमेंट कितना है टोटल? 20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5. तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4,000. इतना इजी है. ठीक है, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है परसेंटेज 10%. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 4,000 लगा, सॉरी 10% है ना, तो 20,000 पे 10% 2,000. सो बचा कितना? 8,000. अभी 18,000 पे 10% मतलब 1,800. दिस इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड पूछते हैं इन सच क्वेश्चंस इन एग्जाम. तो यही आएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट कि डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है. सो ओके, हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द चार्ट. तो अभी यहाँ पे 5 साल के लिए वी हैव टू क्रिएट 5 कॉलम्स. फर्स्ट, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट बनाते हैं पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे ईयर्स. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. तो ठीक है, हमने 5 साल बना लिए. Four and 5. Okay, it's very difficult to write with this pen on the screen. So, okay. So first we will start with what they have given in question. ये years लिख दिए. So first is cash inflow before depreciation and tax. कितना है? 10,000, 8,000, 4,000, 10,000 and 10,000. ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ये जब देते हैं सो इसको पीबीडीटी भी बोलते हैं. अगर इफ यू हैव सम मेमोरी, ठीक है, हम सब गजनी नहीं है, तो दिस इज नोन एज पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. पहले हम इसमें क्या करते हैं? लेस डेप्रिसिएशन, जो कितना है? 4,000 फॉर ऑल द ईयर्स. तो 4,000 सब ईयर में से माइनस करेंगे. Okay, so we will get profit before tax will be 6,000. 8 minus 4, 4,000. 4 minus 4, 0. 10 minus 4, 6,000 and 10 minus 4, 6,000. ठीक है, अभी इसमें हम करेंगे माइनस टैक्स, और टैक्स का परसेंटेज उन्होंने दिया है माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 5%. तो 6,000 पे 5% आएगा 300. 4,000 पे 5% आएगा 200. यहाँ पे तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं बिकॉज 0 है. यहाँ पे भी आएगा 300 एंड यहाँ पे भी आएगा 300. ये ब्रैकेट में जाएगा बिकॉज इट्स माइनस. तो हमको आएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इसका फिगर हो जाएगा 5,700
3,800, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5,700 एंड यहाँ पे 5,700। अभी क्या करना है, यहाँ पे कैश फ्लो। लेट मी टेल यू ये क्या होता है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कि कितना कैश हमारे पास बचेगा, राइट। डेप्रिसिएशन जो एंट्री हम लेते हैं ना, डेप्रिसिएशन ये सिर्फ बुक्स के लिए लेते हैं। क्यों? मतलब अगर हमने एक फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की वैल्यू अगर हमने वो 50,000 में फर्नीचर लिया है, 5 साल बाद अगर हम बेचने जाएंगे तो उसकी 50,000 वैल्यू नहीं आएगी, कम आएगी, बिकॉज हर साल उसकी वैल्यू कम होते जाती है। उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो एक्चुअली पैसा जाता है क्या हमारे पॉकेट से? नहीं। कैश जा रहा है, किसी को पे कर रहे हैं? नहीं। इट्स जनरली जस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसलिए ये कैश जो डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं ना, वो एक्चुअली पैसा नहीं जा रहा है। इसलिए कैश फ्लो जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन को फिर से हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यों किया? बिकॉज टैक्स जो होता है ना वो पीबीटी पे ही कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, एंड टैक्स माइनस होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, बिकॉज ये पैसा है हमारे पास, गया नहीं है। टैक्स हमने पे किया कैश में, लेकिन डेप्रिसिएशन किसी को पे किया है क्या? नहीं किया। तो ये फिर से ऐड कर देंगे 4,000 हर साल में, ठीक है। तो फाइनली वी हैव आर कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है? 9,700, 7,800, 4,000, 9,700 एंड 9,700, ठीक है। ये इतना पैसा हमको मिला है। अभी इसके बाद जैसे हम प्रीवियस सम में किया, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर। फैक्टर एट द रेट ऑफ, आई थिंक सो 10% ही दिया है इसी में। सो फर्स्ट ईयर का जैसे मैंने बोला 1 डिवाइड बाय 1.1, ये क्वेश्चन में दिया होगा क्वेश्चन पेपर पे कहीं तो, बट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। 0.826, 0.751, 0.683 एंड फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के लिए 0.621। तो हमारा डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो क्या होगा? 9,700 into 0.909, which would be 8,817.3. Next. शुभम स्क्रीन वर घे ना. Okay. काय बघायचंय? अरे म्हणजे खाली घे, तू आता जे करतोस ते दिसत नाही. ओके ओके. आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग, ये जो कैश इनफ्लो आया है उसको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 7,800 into 0.826, which would be 6,442.8. Similarly, 4,000 into 0.751, which should be 3,004. Next, 9,700 into 0.683, which should be 625.1. And finally, 9,700 into 0.621, which should be 6,023.7. तो जैसे प्रीवियसली किया, अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसका क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव DCIF, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते जाना है सबको। तो फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा, 8,817.3 प्लस 6,442.8, तो ये होगा 15,260.1। नेक्स्ट प्लस 3,004, तो ये आएगा 18,264.1 प्लस 6,625.1, which should be 24,889.2 plus 6,023.7. So finally we have 30,912.9. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कैश इनफ्लो। इसमें हम माइनस करते हैं
माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 यहाँ पे दिया है, राइट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। हमको कितना मिलेगा? 30,921. So minus 20,000. So finally we have our NPV, which is equal to 10,912.9. Okay, and उन्होंने बोला है calculate profitability index. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब कुछ नहीं, रेशियो है इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, मतलब कितना प्रॉफिट तुम लोग को हुआ है, रेशियो निकालना है. सो इट्स कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, विच इज इक्वल टू 30,912.9 डिवाइड बाय 20,000 जो आएगा 1.55. And here we have got our 10 marks. तो बहुत इजी है, बट ये जो प्रोसेस है ना इसमें गलती मत करो. डेप्रिसिएशन इतना ही याद रखो, कभी भी क्वेश्चन यही बेसिक होगा. सो क्या करना है, हमको कैश फ्लो दिए होंगे 5 साल के लिए, उसमें पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. हाँ, इसमें एक चीज सिर्फ हो सकती है, अगर क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ एसेट is 1,50,000, ठीक है, एंड स्क्रैप वैल्यू मतलब जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो जो एसेट्स हम लेते हैं ना वो भंगार में देते हैं, तो जो भंगार से पैसे आते हैं उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं. सो दैट इज 50,000 एंड नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 5. तो इसमें दो चीजें सिर्फ एक्स्ट्रा होगी. डेप्रिसिएशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. तो इस केस में स्क्रैप वैल्यू थी नहीं, बट यहाँ पे अगर होती तो ये क्या होता? 1,50,000 माइनस 50,000 दैट इज 1 लाख डिवाइड बाय 5. सो हमारी डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आती? 20,000. और एक सेकेंड एंट्री क्या करनी पड़ती है? स्क्रैप वैल्यू मतलब 5 साल के बाद हमको ये भंगार के पैसे भी मिलेंगे, राइट? तो जब हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, यहाँ पे जो हमने डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो किया ना, इसके बाद हम 30,912.9 प्लस स्क्रैप वैल्यू 50,000 ऐड करेंगे तो आएगा 80,912.9. एंड फिर इससे हम ये जो आउटफ्लो है ना 20,000, अभी इस केस में अलग है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, बट अगर ऐसे होता तो फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं एंड देन वी गेट आवर एनपीवी. ठीक है, so ऐसे भी सम आ सकता है. सो बेसिकली करना क्या है? कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन करना है, हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर टैक्स निकालना है जितना भी परसेंट दिया है उस पे. फिर हमको मिलेगा टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर उसमें फिर से क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना है. डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा कैश इनफ्लो. अभी कैश इनफ्लो है तो उस पे पहले हम क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर जो क्वेश्चन पेपर में हमको दिया होगा @ 10%, 15%, उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. फिर उसका एक फाइनल आंसर मिलेगा क्यूमुलेटिव. उसमें से कैश अगर स्क्रैप वैल्यू है तो ऐड करेंगे स्क्रैप वैल्यू, वरना नहीं है तो कुछ भी नहीं. और फिर फाइनली उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एनपीवी. सो आई होप इट्स क्लियर. 10 मार्क्स यहाँ पे भी इजीली मिलते हैं. सो अभी तक हमने कंफर्म, हाँ 10 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन एनपीवी पे आता है एंड कंफर्म क्वेश्चन फोरकास्टिंग पे आता है. सो टिल नाउ what we have covered is we have covered 20 marks out of the 60 जो confirm questions आते हैं वो. And I hope everything is clear. किसी को कोई doubt? शुभम ते या प्लीज. हाँ ते डेप्रिसिएशन होतं ना, कॉस्ट ऑफ एसेट स्क्रॅप व्हॅल्यू, ते हाँ. कसं काढतो आपण एकदा सांग. ते डेप्रिसिएशन फॉर्मूला लिख लो चाहिए तो. डेप्रिसिएशन पर ईयर
इन स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है। कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी क्वेश्चन में दिया है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू द होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ या लाइफ टाइम और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस सम में भी अगर हम लेते सेम फॉर्मूला तो कुछ नहीं था ना, 20,000 माइनस ये तो 0 ही था डिवाइड बाय 5, तो ये सेम ही आने वाला था। ठीक है, शुभम एकदा ये क्या नाम है इसका, हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी बता देना, बिकॉज वैसा क्वेश्चन आया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, हाँ। याद नहीं है। तो अगर रिटर्न डाउन वैल्यू है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सो 20,000, ठीक है, सो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द रेट ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है ये, एट द रेट ऑफ 10%। तो ईयर 1 के लिए 10% 20,000 पे तो 2,000, तो ईयर 1 का डिप्रिसिएशन मिल गया। ईयर 2 के लिए 18,000, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, ये रिटर्न डाउन वैल्यू इस पे 10% मतलब 1,800, तो ईयर 2 का 1,800, तो ये आएगा 16,200। अभी फिर से ईयर 3 के लिए इस पे 10%, तो ये आएगा 1,620, तो 16,200 माइनस 10%, तो ये आएगा 14,580। अभी फिर से 4th ईयर के लिए इसका 10% मतलब 1,458, तो ये आएगा माइनस 10%, 13,122। एंड फाइनली 5th ईयर का इसका 10% विच वुड बी 1,312.2। सो ये हो गया, जो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना तो ये वैल्यू लिखेंगे वहां पे, ऐड और माइनस जो करते हैं उसमें वो। बट मैं इतना श्योर हूं कि वो लोग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं देंगे, कंसिडरिंग कि नॉट एवरी स्टूडेंट इज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। सो मोस्टली जितना मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं सब में स्ट्रेट लाइन मेथड ही पूछी जाती है, जो ये इजी वाली है। लेकिन अगर इन केस इफ आवर बैच इज वेरी अनलकी एज 2018 वाली बैच, तो ये आ सकता है। शुभम अगर ये आया तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन के लिए हमने पिछले मेथड में 4,000 लिया था फॉर एग्जांपल, उसकी जगह हम ईयर 1 के लिए 2,000, ईयर 2 के लिए 1,800 ऐसे लेंगे ना। यस, हाँ ठीक है, थैंक्स, वेलकम। और किसी को कोई डाउट? शुभम IRR मध्ये बघ आपल्याला IRR कॅल्क्युलेट करायला देतात, कॅश फ्लो दिला असतो फक्त, अभी आणि IRR मग का आपण नेक्स्ट अज्युम सम, करतो ते 12 पासून, हाँ, 12% किंवा 14%। यस, अभी वो अच्छा, सम करतोय हम का आपण तसं? यस IRR भी करते हैं, सब करेंगे आज। अभी लास्ट सम IRR पे ही है। लेट मी शेयर द सम विथ यू। शुभम, हम्म, त्याच्या आधी ना मला एक थोडा डाऊट होता. बोल आपण ना. ती स्क्रॅप व्हॅल्यू पण लास्ट इयर मध्ये ऍड केली, डिस्काउंटेड कॅश इनफ्लो क्युम्युलेटिव्ह मध्ये, हाँ हाँ, तर ती तिथे ऍड करायची आहे का जेव्हा आपण कॅश फ्लो म्हणजे पॅट प्लस डेप्रिसिएशन करून फायनल इयरला तिथे टाकायची, का मग तू दाखवलं तसं? मोस्टली हाँ, इफ वी वांट टू कॅल्क्युलेट डिस्काउंटिंग कॅश फ्लो ना, तर तिथे केली तर बेटर आहे. म्हणजे कुठे ह्या इथे, तो ये मैंने नीचे की, बट एक्चुअली वो मैं एग्जाम्पल दे रहा था इसलिए मैंने नीचे किया, बट एक्चुअली वो यहाँ पे ऐड होती है। लेट मी शेयर, बिकॉज उसके भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकलेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है? सो एक्चुअली यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इसके इधर कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी। तो अगर यहाँ इस सम में दिया होता तो यहाँ पे वो 4,000 जो भी स्क्रैप वैल्यू होता यहाँ पे ऐड करते, एंड देन ये जो टोटल अमाउंट है ना 13,700 उस पे हम इनटू मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करते। ओके, थँक्यू. यस, हॅलो शुभम, हाँ बोल ना. खाली जा ना थोडा याचा, बघ ना ते 30,900. हा, मग हे 20,000 तू काय केलं, हे ऍड केलं की सबट्रॅक्ट केलं हे मला समजलं नाही. कुठलं हे? हा, जे रेड मध्ये लिहिलंय बघ ना कुठे? 30, त्याच्यामध्ये तू बोललास की स्क्रॅप व्हॅल्यू आपली 50 आहे.
हा ती इथे ऍड होईल खरं म्हणजे मी तर आता सम मध्ये नव्हतं म्हणून मी एंडला फक्त केलं. ऍक्च्युली ती इथे होईल जर फॉर एक्झाम्पल ह्या इयरचा लास्ट इयर 5 चा कॅश इनफ्लो त्या म्हणजे 1 लाखच्या त्या सम मध्ये फॉर एक्झाम्पल असता 45,000 हा तर मग आपण त्याच्यात ती 50,000 ऍड केली असती म्हणजे Okay. टोटल आली असती 95,000 आणि मग 95,000 इंटू 0.621 म्हणजे ते येईल 95,000 इंटू 0.621 विच इज 58,995. ठीक आहे मग ह्याच्या जागी आली असती ही जी व्हॅल्यू आहे ना ह्याच्या जागी येईल 58,995 आणि मग नॉर्मल जो आपण सम करतो तसंच. अच्छा मग हे सबट्रॅक्शन 20,000 केलेस ते आउटफ्लो हा आउटफ्लो है येस हा Okay. आउटफ्लो है हा हा ते आउटफ्लो एंड में ही होगा. हा हा चालेल थँक्स. येस वेलकम. पण शुभम जर आपण स्क्रॅप व्हॅल्यू तिथे ऍड केली जी आता तू केलीस हा. कॅश इनफ्लोच्या खाली हम्म. ती आपण मागच्या सम मध्ये जसं लास्टला केलेली तसं पण म्हणजे चालतं आणि तिथे पण आपण नाही action नाही नाही करायची इथेच करायची बिकॉज काय है स्क्रैप वैल्यू भी अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 है बट 5 साल बाद उस 50,000 की वैल्यू भी कम हुई होगी ना हाँ उस पे भी एक्झॅक्टली डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना चाहिए इसलिए यही पे करना है. यहाँ जगह नहीं थी म्हणून मी ते खाली गेलेली बट मोस्टली यही करना है ओके ये जो कैश इन्फ्लोस के बाद. कूल थँक्यू. Welcome. So finally we are at our last sum in this particular thing which is NPV. NPV में भी हम पहले तो सॉरी IRR इसमें फर्स्ट तो NPV कैलकुलेट करना ही पड़ता है. नाउ इफ वी आर लकी ना तो ये क्वेश्चन में 2% दे देते हैं 10% 15%. लेट मी शो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं ये क्या दिया है. सो यहाँ पे दिया है Toy Manufacturing Industries Limited has an investment proposal of 40 lakhs. The expected cash flow is under. तो 10 years दिए उसके cash flow दिए. Calculate IRR, internet rate of return with the help of 10% discounting factor and 15% discounting factor. तो यहाँ पे खुद से इन्होंने 2% दिया है वरना सिर्फ इतना ही देते कि कैलकुलेट आईआरआर तो जैसे अजिंक्य का क्वेश्चन था हमें अज्यूम करना पड़ता है. पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना कैसे तो बेसिक स्टार्ट तो सेम होगा हम लिखेंगे ईयर एंड द कैश फ्लो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then we have 7 7 8 8 9 9 10 10 and 8 6. ठीक है फिर अभी दो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है तो फर्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%. सो ये क्वेश्चन में देखो दिया है अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो हमें भी आएगा बट नहीं आया तो वो मैंने जो टेक्निक बताई है 10% के लिए 1 डिवाइड बाय 1.1 15% के लिए 1 डिवाइड बाय 1.15 वो करना है. ठीक है सो यहाँ पे तो दिया है उन्होंने 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.563 4 0.513 0. एंड लेट मी टेल यू अगर ये सम आ भी नहीं रहा है ना बट बेसिक कैलकुलेशंस अगर ये चार्ट भी ड्रॉ करके आओगे ना क्वेश्चन में एंड ये मल्टीप्लाई करके रखोगे आधे मार्क्स तो इसके है. ठीक है सो ये मत सोचो कि फाइनल आंसर नहीं आ रहा है या भूल गया एनपीवी का फॉर्मूला क्या था आईआरआर का फॉर्मूला क्या था. इवन इफ यू ड्रॉ दिस चार्ट एंड ये डिस्काउंटिंग फैक्टर और क्यूमुलेटिव तक किया ना फिर भी यू आर गोइंग टू स्कोर द मार्क्स. तो जितना आ रहा है उतना ड्रॉ करके आओ. This is my suggestion. At least you would score half marks 0 के जगह. So this is 3.363 7 into 0.826 5.782 8 into 0.751 6.008. I think so I have this solved. Let me check. अगर होगा तो डायरेक्टली कैलकुलेशन में टाइम नहीं निकालते.
Oh, I have this. Nice. इसका फॉर्मूला अभी है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ वैल्यूज 5.464, 5.8, 589, 5.076, 5.130, 4.670, 3.392 and 1.482. Similarly, discounting factor at the rate of 15%, ये दिया है हमको 0.870 जो भी है वो, ठीक है। एंड इसका डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो आएगा 6.083. शुभम, हाँ बोलना। यार ये 10th ईयर वाला DCIF शायद गलत है। 10th 6 ईयर का, into 6 into हाँ 386 करेंगे ना? 2.3167 ओके कितना है? 2.316 2.316. क्या बात है तपिश से डा 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 डा। सही पकड़े हो। 5.292. ये क्रॉस चेक करते जावा। शुभम, हाँ बोलना। हा ऐक ना, आपल्याला कळणार कसं? नाही नाही, काय नाही जाऊ दे. काय करणार कसं? अरे जर तिथे आता तू बोललास ना 2% दिले, जर एकच दिलं असलं मग काय करणार? हाँ मी सांगतो ना, ते सांगणार ना मी. ओके ओके चालेल. सो ये इस क्वेश्चन ये सबसे इजी सम था आईआरआर में। आईआरआर में इतना आसानी से हमको ये मिलता नहीं है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है उस केस में। ये क्रॉस चेक करो कोई, तो मैं ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ। मेरे पास जो था उसमें वो ऐसे रफ किया था मैंने, तो शायद थोड़ा गलत हुआ होगा। एंड देन इसका टोटल भी लेना है। ठीक है, सो ये टोटल आता है दोनों का, जैसे अभी तक हमने किया है। इसमें क्यूमुलेटिव देखने की जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव तभी करते हैं जब पेबैक पीरियड होता है, इतना याद रखो। पेबैक पीरियड नहीं है तो क्यूमुलेटिव नहीं किया तो भी चलता है, ये वाला, ये जो फॉर्मेट है उसमें, ठीक है। अब ये है टोटल कैश इनफ्लो। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कैश आउटफ्लो। कितना दिया है क्वेश्चन में? 40 lakhs। सो ये 40 lakhs माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा एनपीवी विच वुड बी 9.79 एंड 0.3। ठीक है, ये मिल गया एनपीवी। अभी आईआरआर का एक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा। आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस, ठीक है, हायर रेट माइनस लोअर रेट इनटू एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो। अभी लोअर रेट क्या है? 10% प्लस हायर रेट क्या है? 15 माइनस 20% इनटू एनपीवी एट लोअर रेट कितना है? 15 माइनस 10 होगा ना शुभम? सॉरी 10 है ना मैंने 20 क्यों लिख दिया यहाँ पे? रब नहीं हो रहा है।
ये रब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 10 है। एनपीवी एट लोअर रेट इज 9.79, जो ये मिल गया एट 10%, डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 9.79 माइनस एनपीवी एट हायर रेट कितना मिला था हमको? 0.3. 0.3, ठीक है। सो माइनस 0.3, so it would be 10% plus 9.79 into 5%, which is 0.4895 divided by 9.79 minus 0.3, which would be 9.49. So our IRR, which is equal to 10% plus 0.4895 divided by 9.49. 10.05. 10.05%. So this is the answer. ठीक है। और what is IRR वो पहले बताता हूँ। IRR is that rate of return जिस पे your NPV will be 0। मतलब जितना आपका कैश इनफ्लो है ना, उतना ही आपका कैश आउटफ्लो होगा, सेम। सो व्हाई डू वी कैलकुलेट IRR? ताकि देखने के लिए हमारा ब्रेक इवन कब हो रहा है, मतलब हमारा जो पैसा हम भर रहे हैं वो कौन से पीरियड में, कौन से इंटरेस्ट रेट पे हमको रिकवर होगा। तो हमेशा उसके ज्यादा ही हम सोचेंगे इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स, तो इसलिए IRR कैलकुलेट होता है। दिस वाज अ वेरी इजी सम। मैंने क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने दिया है 10% एंड 15%। कभी कभी क्वेश्चन में दे डू नॉट मेंशन कि ये परसेंटेज कितना लेना है, तो वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें करते जाना होगा एनपीवी कैलकुलेट फॉर रैंडम परसेंटेज। तो फॉर एग्जांपल अभी 10% के लिए हमको एनपीवी आया था 9.3, ठीक है। तो सॉरी 10% के लिए आया था। तो हम क्या करेंगे, आगे का दिया नहीं है कितना, 15% यहाँ पे तो दिया था 0.3। यस, इफ यू रियलाइज यहाँ पे हम पहुंच गए थे ना 0 के पास में, देखो 0.3 यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 होने वाला था, इसलिए फाइनल आया 10.05%। तो सिमिलरली अगर हमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, एनपीवी अभी हम 12% पे पूरा ये जितना ये पूरा कैलकुलेशन किया ना 12% पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 12% पे एनपीवी आया लेट्स से 2.4 विच इज नियर टू 0 बट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अभी 11% पे ट्राई करेंगे। 11% पे आया 1.05, तो हाँ अभी समझा, पास में आ गया, 0 के पास में आ गया एनपीवी। तो 10% पे करेंगे, 10% पे आया 0.3, ठीक है। तो 10% पे रुक जाएंगे। फिर ये जो IRR, सॉरी ये मैं उल्टा बोल रहा था, 12 ये बढ़ते जाना चाहिए ना, 12 ये 14 और ये 15% बढ़ते जाएंगे। बिकॉज ये याद रखो, हायर द डिस्काउंटिंग फैक्टर लोअर द एनपीवी, इतना याद रखो। तो हम अगर एनपीवी को नीचे लाना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ते जाना चाहिए। तो 10 तक का पे 9.3 आया, 12 पे 2.4, 14 पे 1.05, 15 पे 0.3 आया, 15 पे रुक जाएंगे। अभी ये हमको मिल गया लोअर रेट और ये हमको मिल गया हायर रेट। एंड अभी जो फॉर्मूला है IRR का, उसमें ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइनली हमारा IRR निकाल लेंगे। भाई ये हायर रेट तो चलो ये समझ में आया कि 0 के पास में आया इसीलिए हायर रेट हाँ, था। लोअर हाँ। रेट कैसे पता चलेगा कि 10 ही होगा? लोअर रेट तो कोई भी ले सकता है, बट मोस्टली लोअर रेट जो होगा ना वो क्वेश्चन में दिया होगा तेरे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। नहीं भी दिया तो 10 से ही चालू करते हैं, मोस्टली 10 के आसपास ही होगा। तो अगर अज्यूम भी करना है ना तो क्वेश्चन पेपर में 10 से स्टार्ट करो एंड फिर आगे बढ़ते जाओ, कितने तक आ रहा है देख लो, चेक कर लो। बट आई होप कि क्वेश्चन में यही आए, डायरेक्टली वो 2 दे दे ताकि टाइम बच जाता है। बिकॉज हमें फिर सिर्फ ये एनपीवी निकाल के फॉर्मूला में डालना है। अगर ये होगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, बिकॉज यू विल कीप ऑन कैलकुलेटिंग ना, हर एक परसेंट निकालोगे, पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर वो टेबल में देखोगे, फिर मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकालोगे, तो टाइम जाएगा। वी होप, लेट्स प्रे टू द गॉड कि ऐसे समय जो डायरेक्टली हमको आंसर मिल सके।
तो ठीक। भाई अभी फिर 30 मार्क्स के कंफर्म हो गए ना? यस, 20 मार्क कंफर्म होंगे ओनली इफ you solve 7 to 8 sums on your own on this both the chapters. ये मिला के 30 नहीं हुए क्या? ये मिला के 30 नहीं हुए हैं। हाँ मतलब लक हुआ ना, तो मोस्टली ऑप्शंस में कैसे होता अरे है, यार, कभी कभी फोरकास्टिंग के दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एनपीवी आईआरआर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 भी आया, क्वेश्चन नंबर 5 भी आया, तो इस केस में यस यू कैन गेट 20 मार्क्स बिकॉज वी हैव 80 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 10 मार्क्स का एक पूरा ये वाला क्वेश्चन है, थियोरी क्वेश्चन है, तो बचते हैं 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स में पहले 20 मार्क्स के तो कंफर्म एक क्रैशिंग पे सम आता है, मोस्टली इसमें से एक फोरकास्टिंग या फिर एनपीवी वाला सम आएगा फर्स्ट इसमें, ठीक है। फिर बाकी के जो 50 मार्क्स बचते हैं और टॉपिक से 4, ठीक है, बचे हुए, तो एक कोई तो टॉपिक का रिपीट होता है, तो शायद फोरकास्टिंग या फिर एनपीवी, तो उस हिसाब से यस वी कैन से 30 मार्क्स। और किसी को कोई डाउट किसी में तो पूछ लो। शुभम, हाँ. ते प्लीज रिपीट कर ना, ते आयआरआर ट्रायल अँड एरर तू पर्सेंट कसे घेत होता ते? हा, बघ 10% आहे, 10% वर आपल्याला एनपीव्ही आला, हा लोअर रेट बघितला आपण, ठीक आहे, त्याच्यावर एनपीव्ही आला 9.3 फॉर एक्झाम्पल. मग आता तुला एनपीव्ही नियर टू 0 पाहिजे टू कॅल्क्युलेट आयआरआर, सो तू मग घेतलं 12%. 12% वर तुला एनपीव्ही आलं 4.2, म्हणजे तू अजून जवळ जायला पाहिजे. सो यू डिसाइडेड टू गो ॲट 14 ला आला 1.5, so almost you are near, so you go to 15% and you finally get 0.3 which is near to 0, so this will be your higher rate. हे Okay, कॅल्क्युलेट thank you. करायला आपल्याला हा पूर्ण चार्ट बनावायला लागणार है परत. सो 12% हो. आया तो 12% पे ये पूरा लिख दो, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दो, फिर कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी टोटल लो, 40 से माइनस करो, एंड देन यू विल गेट दैट 4.5 0.3 यहाँ पे फाइनली एनपीवी मिलेगा. शुभम, हाँ हॅलो, बोलो ना. हाँ बोल. ऐक ना, आयआरआर मध्ये आता तू म्हंटला 2 व्हॅल्यूज होते, तर ते कळलं मला, पण हा. एक जर पर्सेंट दिला असेल तर मग तो फॉर्म्युला युज करायचा आणि दुसरी व्हॅल्यू अज्युम करायचं का, लोअर वाली? अज्युम म्हणजे हे करत जायचं. आता एकच व्हॅल्यू आहे ना, लोअर व्हॅल्यू आपल्याकडे दिलेली असणार, ज्याच्यावर 9.3 आलं. आता हा. आपल्याला एक 0च्या नियर एनपीव्ही पाहिजे, मग आपण 12 वर कॅल्क्युलेट करून बघायचं किती येतंय एनपीव्ही, 14 वर करून बघायचं किती येतंय, 15 वर करून बघायचं. मग जेव्हा आपल्याला एनपीव्ही नियर टू 0 येईल ना, ती हा. व्हॅल्यू हायर रेट साठी घ्यायची. ओके, ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे. आयआरआर रेट के लिए अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैश इनफ्लो भी कर सकते हैं ना, तो उससे एक रेट मिलेगा. अगर रेट फिर मिलेगा. रेफर करेंगे तो यस, वो भी कर सकते हैं. अगर इनिशियल रेट भी नहीं किया तो वी कैन डू दैट कि इनिशियल हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 40 lakhs है, ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स 10, बट यहाँ पे तो नहीं होगा वो. हाँ, अगर कुछ बेस ही नहीं है तो उसके लिए वो कर सकते हैं, तू जैसे बोल रहा है वैसे. लेकिन अपने को पेपर में वो एन्युटी टेबल देते हैं क्या? पूरा देते हैं ये. अगर तू हर ठीक है. साल का पेपर देगा ना तो उसमें सब है. 10 to 20 तक होते हैं, आई थिंक सो 5 to 20 तक देते हैं परसेंटेज का. इफ यू चेक डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं तो एन्युटी टेबल का बोल रहा हूँ. एन्युटी टेबल नहीं देते हैं, कभी नहीं देते. तो क्योंकि इसीलिए ये तो बोल जब- रहा हूँ, ये देते हैं ना वो लोग, ये वाला दे देते हैं, ये पॉइंट्स 10% एंड 15%. हाँ, बट आईआरआर का जब भी रेट अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज कैश फ्लो करते हैं, हाँ. तो एक रेट आता है अपने को. वो रेट को अपन एन्युटी टेबल में देखते हैं कौन से देखते हैं. परसेंटेज हाँ, उधर हाँ, वो फॉल हो रहा है. हाँ, फिर वो हाँ, एग्जैक्ट परसेंटेज लेगा तो एनपीवी उधर 0 ही रहता है ना. बट वो नहीं है ना, वो मेथड इधर नहीं फॉलो. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही मेथड है, वो डिफरेंट मेथड, जो एन्युटी वाला मेथड ही अलग है, जो हमारे पोर्शन में है ही नहीं. अच्छा, ठीक है. वो लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने किया था ना वो. ठीक है, ठीक. इसमें नहीं है, वो नहीं कर सकते इस पेपर में. नहीं, I- अगर एन्युटी टेबल नहीं दे रहे तो फिर उसमें नहीं मिलेगा वैल्यू. नहीं मिलेगा ही नहीं.
मैं देख रहा था कोई ऐसा सम था क्या, तो नहीं था जिसमें, पेपर में तो ऐसे सम नहीं आया है शायद जिसमें आईआरआर का परसेंटेज नहीं दिया हो। लेट मी चेक। नहीं है ऐसा कोई सम, दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर। और किसी को कोई डाउट? Let me share the question numbers which you can solve meanwhile from test book. तो नोट कर लो। फोरकास्टिंग के लिए टेक्स्ट बुक में तो लास्ट पेज पे है क्या सम्स? टेक्स्ट बुक के सम्स की जगह इफ आई शेयर, सबके पास क्वेश्चन पेपर्स तो होंगे ना, नहीं होंगे तो आई थिंक सो किसी ने ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी डाली है। सो इन नवंबर 2019 पेपर वी हैव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे सो यू कैन वेरीफाई दैट। एक बार लेट मी शेयर स्क्रीन। हाँ, सो ये एक बार देख लो। एंड एग्जाम के सम जितने सॉल्व करोगे ना, सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं तो इट्स बेटर। तो फर्स्ट इन नवंबर 2019 पेपर, इफ यू हैव टू सॉल्व फोरकास्टिंग में, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2B। लेकिन ना 2B जो पूछा है ना उन्होंने, वो ट्रेंड एनालिसिस मेथड से पूछा है, जो मैंने रिग्रेशन वाला नहीं किया है। फॉर नाउ डू दैट यूजिंग 5 months मूविंग एवरेज मेथड और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। एंड ट्रेंड वाला ना मैं एक बार, मतलब बहुत रेयरली वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन ट्रेंड वाले का दे देता हूँ। यू ट्राई टू सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग 5 months मूविंग एवरेज। एंड उसी पेपर में वी हैव क्वेश्चन नंबर 3A for NPV, क्वेश्चन नंबर 4A for NPV and जो हमने अभी तक आई थिंक सो किया। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6A जो हमने किया, वो भी एक बार यू कैन ट्राई फॉर फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6B भी है, तो ये है 2019 का। ट्राई टू सॉल्व दिस। देन वी हैव पेपर ऑफ May 2022 लास्ट ईयर का, उसमें यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 जो फोरकास्टिंग पे है। देन वी हैव हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 NPV पे। देन वी हैव May 2019 का पेपर जिसमें यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1B जो हमने ऑलरेडी किया है, बट यू कैन चेक NPV का सम। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B ना थोड़ा सा उन्होंने वो पैराग्राफ फ्रॉम में किया है, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं हुआ देन
tell me in the group. I will share the solution. Meet 2019 के पेपर का. Then question number 3A. 3A, okay, हाँ, debt service coverage ratio मैंने अभी तक बताया नहीं है. Let me share that in next session एक बार. Then we have question number 3B, forecasting पे ही है, जो हमने I think से solve किया है. ओके, ये वाला पेपर है ना 2019, इसमें बहुत सारे आए थे एनपीवी और फोरकास्टिंग के सम. तो क्वेश्चन नंबर 4A भी है, क्वेश्चन नंबर 4B भी है, क्वेश्चन नंबर 5A भी है. सो इफ यू आर लकी कि इसमें इतने सारे एनपीवी और सम आए थे फोरकास्टिंग के, सो स्कोरिंग पेपर था ये वाला 2019 वाला. और एक इफ आई शेयर वन मोर पेपर ऑफ I think so. बस इतने sums enough है अभी के लिए. इतने sum if you do by evening today, I think so you are done with the forecasting and NPV IRR. इतने solve किए तो भी ठीक है. And one update on the session, जो afternoon का session है, I'm planning to take it in the evening because I have some work. So mostly we will start that at 8 PM today, 8 to 9:30, something like that. Hi Shubham, are you going to cover BCWP and AC like those? Yes, in tomorrow's session. That would be performance analysis. Okay, cool, thank you. I will try to cover everything. Let me first stop recording.